Hello everyone. In today's lecture on 23rd of April by Shende Madam for subject physics applied part, that is section 2. I would like to share my own views regarding study and preparation of examination. Students, remember, we all teachers care for your studies. We always try to help you in your studies with interaction with you. Even in such current pandemic situation, we are interacting through online platform. That is, we have adopted e-learning for even for examination also. So for physics, for annual examination, you will have two papers on two separate dates. Each paper carries 25 marks. Second paper for physics in May is based on applied physics, the syllabus covered by me. So we have covered in all 6 chapters. Chapter number 9 to chapter number 14. All the chapters are there for examination. Deleted syllabus from each and every chapter will be as it is. There will be no questions on deleted syllabus from the chapters. Questions will be based only on the syllabus. सो डिलीटेड सिलेबस का मैंने पोस्ट किया था, आप लोगों के पास वो डिलीटेड सिलेबस है, उसका स्टडी नहीं करना है, फॉर एग्जाम ओनली. So in all you have all 6 chapters for second section of physics, that is on the question paper set for applied physics, the syllabus taught by me from chapter 9 to 14 excluding deleted syllabus. No questions will be set on the deleted syllabi for the chapters. This is the first point. Second point, the questions will be set on each and every chapter. ऐसा नहीं है कि all questions will be from chapters 9 to 12 and there will be no any question from chapters 13 and 14. ऐसा नहीं है. हर एक चैप्टर के ऊपर क्वेश्चंस सेट किए हैं. थर्ड पॉइंट, द वेटेज ऑफ द क्वेश्चंस विल बी डिपेंडिंग ऑन द डिलीटेड सिलेबस. डिलीटेड सिलेबस है जो उसके हिसाब से हर एक चैप्टर में क्वेश्चंस अराइज हो जाएंगे, बट ऑन ईच एंड एवरी चैप्टर एटलीस्ट यू विल गेट 3 क्वेश्चंस. हर एक चैप्टर के ऊपर 3 क्वेश्चंस जरूर रहेंगे. 9, 10, 11, 12, 13, 14 6 चैप्टर से हर एक के ऊपर 3 तो रहेंगे ही. तो कितने हो गए? 6 3 जा 18 and additional questions which are left for 25 is 7. ये जो 7 questions है ना, ये 7 questions depending on the weightage of the chapter. मैंने कि लाइट में बहुत सारे वेटेज है, तो लाइट में इसके 2 आएंगे. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आउट ऑफ 7 1 सेट किया जाएगा.
मैग्नेटिज्म में आउट ऑफ 7 1 सेट किया जाएगा, बट फॉर ईच एंड एवरी चैप्टर based on each and every you will have minimum 3 questions per chapter. For few chapters numerics are also there. तो ऐसा नहीं है कि एमसीक्यू टेस्ट है तो आप लोगों को न्यूमरिक्स नहीं सॉल्व करनी पड़ेगी. न्यूमरिक्स विल बी इंक्लूडेड इन दिस एमसीक्यू टेस्ट कंडक्टेड बाय गूगल फॉर्म. न्यूमरिक्स भी आ सकती है, आएंगी, तो न्यूमरिक्स के हिसाब से भी आप लोगों को प्रिपरेशन करना है. सो रिमेंबर दिस पॉइंट्स वेल. 1 minute. एमसीक्यू में न्यूमरिक्स भी इंक्लूडेड है. जो मैं बोल रही हूं आप लोगों को ध्यान से सुनना है. बी वेरी केयरफुल, लिसन केयरफुली एंड देन स्टडी अकॉर्डिंगली. सो पूरे के पूरे एमसीक्यू ही है. यू हैव टू सिलेक्ट एंड यू हैव टू प्रेस द बटन फॉर द करेक्ट ऑप्शन वाया गूगल फॉर्म. ये तो करना ही है. लेकिन सब क्वेश्चंस खाली थियरी पे नहीं आएंगे. हर एक चैप्टर के मिनिमम 3 क्वेश्चंस सेट किए हैं मैंने पेपर 2 के लिए, जो सेकंड पार्ट में फर्स्ट पेपर है, दैट इज ऑफ अप्लाइड फिजिक्स. द एंटायर सिलेबस इज देयर फ्रॉम चैप्टर 9 to 14. रिमेंबर दिस वेल. एमसीक्यू भी आ सकते हैं. अभी थियरी प्लस न्यूमरिक्स आएंगे. थियरी प्लस न्यूमरिक्स मिला के हम लोग अभी रिवीजन स्टार्ट करेंगे. लेट अस डिस्कस अबाउट द पॉइंट्स फ्रॉम चैप्टर ऑप्टिक्स, चैप्टर नंबर 9. चैप्टर नंबर 9 में वी स्टडी द फिनोमेना रिगार्डिंग लाइट एनर्जी. So you are familiar with reflection, with refraction. Refraction is more important because in that the ray after crossing the boundary moves in second refracting medium. Refracting यानी कि the ray changes the medium. Third phenomenon we learned is total internal reflection. This is new. This is a special type case of refraction. Refraction में ही ये आता है. Only the refracted ray gets rebound back in the same medium. So conditions of total internal reflections क्या चाहिए? Initially it should move from denser medium and should incident on the boundary separating denser medium with from comparatively rarer medium. अदर साइड में रेयर मीडियम होना जरूरी है. बोथ मीडिया शुड बी ट्रांसपेरेंट फॉर लाइट. लाइट तो दोनों में ही जाने वाला है. ये पहली कंडीशन है. मीन्स व्हाट? व्हेन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑकर्स, इनिशियली रे इज मूविंग फ्रॉम डेंसर and under certain condition it will get reflected, otherwise it will go in the other rarer medium. so rarer है तो स्पीड बढ़ेगी. डेंसर में स्पीड क्या होती है? कम होती है. सो ऐसा भी क्वेश्चंस आ सकता है. इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फ्रॉम ग्लास टू सपोज एयर, द वेलोसिटी ऑफ लाइट in glass is greater than that of air. Second option, velocities in both the media same. Third option, velocity in air is greater than that of glass. जब भी वो TIR पॉसिबल है, TIR पॉसिबल यानी कि वो डेंसर से रेयर जा रहा है. बराबर. तो फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, initial velocity of light in first medium is always less than the velocity of light in its second medium. The angle of incidence in denser medium should be greater than the critical angle. तो velocity के बारे में भी क्वेश्चन आ जाता है, आ सकता है.
ऐसे छोटे छोटे बिट क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि लंबे क्वेश्चंस तो, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस तो डाल नहीं सक रहे हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द फिनोमेना, सच स्मॉल बिट्स क्वेश्चंस बट ट्रिकी, थोड़ा सा ट्रिकी रहेंगे। यानी कि ऐसे डायरेक्ट नहीं बोलेंगे फॉर टी आई आर व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर, शुड फ्रॉम रेयर टू डेंसर, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। थियरी बेस्ड एप्लीकेशन, यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट will be dash 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 as compared to velocity of light in the other medium for TIR, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। द अदर क्वेश्चन इज, द सेकंड इज डिस्पर्शन। हम लोगों ने डिस्पर्शन स्टडी किया। डिस्पर्शन ऑब्जर्व होता है विथ नेकेड आई फॉर व्हाइट लाइट। तो व्हाइट लाइट के डिस्पर्शन के ऊपर क्वेश्चन सेट किए जा सकते हैं। मीन्स इन डिस्पर्स्ड बीम ऑफ व्हाइट लाइट सपोज थ्रू प्रिज्म, विच कलर गेट्स मिनिमम डेविएटेड, यानी कि वो इनिशियल पाथ से कम किसका डेविएशन होता है, ये वॉयलेट है। विच कलर इज नियरर टू द बेस ऑफ द प्रिज्म इन डिस्पर्स्ड बीम ऑफ व्हाइट लाइट, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वॉयलेट कलर बेस के नियरर है, यानी कि इसका डेविएशन मैक्सिमम हो गया। विच कलर्स ट्रेवल विथ मिनिमम वेलोसिटी व्हाइल पासिंग थ्रू प्रिज्म, जिसकी वेलोसिटी कम है उसका डेविएशन ज्यादा होता है, इट गेट्स डेविएटेड मोर। सो लीस्ट velocity is for violet light because its deviation is greater or is maximum out of all these colors. ऐसे क्वेश्चंस छोटे छोटे आएंगे। डिस्पर्शन के बाद हम लोगों ने फॉर्मूले सीखे, एंगुलर डिस्पर्शन, डिस्पर्सिव पावर। ये जो न्यूमरिक्स है वो बड़ी बड़ी है, वो तो नहीं आ सकती है। दूसरा फॉर्मूला हमने कौन सा लिखा, प्रिज्म फॉर्मूला, n इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा m बाय 2 अपॉन a बाय 2। ये भी उसके, अगर दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑर्डिनरी प्रिज्म के लिए है, तो इसमें बेस्ट अगर मैं न्यूमरिक डालती हूं तो प्रॉब्लम आता है। तो इट कैन बी रिड्यूस फॉर थिन प्रिज्म, तो थिन प्रिज्म का फॉर्मूला आता है डेल्टा इज इक्वल टू n टाइम्स n माइनस 1। सो डेविएशन फॉर थिन प्रिज्म थ्रू थिन प्रिज्म, उसके ऊपर न्यूमरिक्स आ सकते हैं। अ थिन प्रिज्म ऑफ गिवन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रिफ्रैक्टिंग एंगल प्रोड्यूसेस डेविएशन of given color. So what is deviation produced for that color if these two are given to you or these two will be given, you might ask to find value of n. So जो फॉर्मूले है ना वो ठीक से करो, ऐसे क्वेश्चन सिलेक्ट करो जिसके ऊपर 1 मार्क के एमसीक्यू सेट हो सकते हैं। देन इफ यू गो फॉर लेंसेस में गए तो क्या डिफरेंट डेफिनेशंस है। ऑप्टिकल पोल सिंगल स्फेरिकल सरफेस रहेगा, नहीं तो क्या रहेगा, लेंस के यहाँ हम लोग ओरिजिन क्या लेते हैं, ऑप्टिकल सेंटर, और सिंगल स्फेरिकल सरफेस के लिए ओरिजिन लेते हैं उसका पोल। सो ज्योमेट्रिक सेंटर is its pole and all the distances or is taken reference to this pole। और इधर पोल के अलावा ये कैसा आएगा, उसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। इफ इट इज अ लेंस, बोथ आर द सेम, नो डाउट। तो डिफरेंट डेफिनेशंस है, उसके ऊपर भी इसके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्टडी द रिफ्रैक्शन, ऐसा जब अगर पूछा तो उसके लिए क्वेश्चंस नहीं सेट किए जाएंगे। रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स वेल। देन वी प्रोसीडेड फर्दर टू स्टडी द डिफेक्ट्स। स्फेरिकल एब्रेशन, क्रोमैटिक एब्रेशन, क्रोमा यानी कि लाइट कलर, ये ध्यान रखो। सो क्रोमैटिक एब्रेशन इज इनएबिलिटी ऑफ लेंस to focus rays of different colors at common point after refraction. That is called chromatic aberration. Inability of lens to focus all rays, that is paraxial as well as marginal, nearer to axis and nearer to periphery, अलग अलग points पे focus हो जाते हैं। That is called spherical aberration. That is due to the construction of the lens.
तो inability to focus rays of different colors is called, inability to focus rays of different types is called dash dash aberration dash dash defect. 4-5 नेम दिए जाएंगे, उसमें से आप लोगों को एक खाली सेलेक्ट करना है। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये सब आप लोगों को तैयार करना है। द सेकंड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या सीखा हम लोगों ने? ईच इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, एडिटिव प्रॉपर्टी सीखी। एडिटिव यानी कि ऐड कर सकते हैं, नहीं तो रिप्लेस कर सकते हैं। सो इनिशियली द बॉडी इज न्यूट्रल, इफ आई वांट टू मेक इट नेगेटिवली चार्ज तो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होने चाहिए, यानी कि प्रोटॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस शुड बी removed off. So when body becomes negatively charged, protons are removed off. It is not possible. So what happens? Electrons are added. Protons remove किए यानी कि नए electrons डाल दिए, because proton electron का number तो same है। अगर body becomes positively charged, deficiency of electrons should be there. So electrons are removed off, deficiency हो जाती है। और अगर बॉडी निगेटिवली चार्ज है, प्रोटॉन्स निकालना मुश्किल है, तो इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए जाते हैं, तो इट इज मोर इन इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे स्मॉल बिट्स क्वेश्चंस आएंगे। अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या सीखा हम लोगों ने? एवरी एंड ईच बॉडी इज एबल टू प्रोड्यूस इट्स ओन इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन इट्स सराउंडिंग। So force acting per unit charge placed at given point P is called electric intensity at that point due to field produced by charge placed at point A. So at distance R, what is value of electric intensity? If the charge is kept in air, K will be 1. So will be then magnitude of charge at A divided by R square. तो ये डिस्टेंस दिया है, नहीं तो कूलम्स लॉ Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। दो चार्जेस है, R इतने डिस्टेंस के ऊपर रखे हैं, तो उन दोनों में फोर्स ऑफ इंटररिएक्शन कितना रहेगा? एक क्वेश्चन तो आएगा ही। देयर इज टाइम लिमिट फॉर एवरी क्वेश्चन? नो, यू कैन हैव योर ओन टाइम, बट यू हैव टू फिनिश answering all the questions, 25 questions in 1 hour. 1 घंटे के पहले आप लोगों को all these questions solve करने पड़ेंगे, because after 1 hour your Google form will become inactive. ये Google form जो हम लोग डालेंगे ना, उसका कंट्रोल है, उसको एक्टिव रख सकते हैं, नहीं तो उसको इनएक्टिव बना सकते हैं। तो हम लोग उसको 1 घंटे आफ्टर 1 आवर वी विल मेक दैट इनएक्टिव। इफ एनी क्वेरी प्लीज पोस्ट इन द चैट बॉक्स, द टाइम इज रनिंग। जो कुछ क्वेरीज है तो आप लोग चैट बॉक्स में टाइप करें, नहीं तो मैं साइड बाय साइड डिवीजन ले रही हूं। फील्ड पैटर्न्स, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो क्या होता है? रेडियली आउटवर्ड्स फॉर पॉजिटिव सिंगल आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, रेडियली इनवर्ड फॉर सिंगल आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज। दो पैरेलल प्लेट लिए हैं और बैटरी को कनेक्ट किए, यानी कि वन बिकम्स पॉजिटिव एंड द अदर विल बिकम नेगेटिव बट यूनिफॉर्मली चार्ज। तो इन बिटवीन आप लोगों को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। तो व्हाट इज द नेचर? इफ द field produced by isolated charges or the pair of these plates, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट इज करंट इन कंडक्टर, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर, वो चैप्टर नंबर है 11। उसमें से बहुत सारा सिलेबस डिलीट किया हुआ है। ओनली द लेफ्ट इज ओहम्स लॉ अप्लाइड टू कंप्लीट सर्किट। The second is connections of the number of cells in series or in different, in series parallel, ये कनेक्शन ये भी इंक्लूडेड है। कार्बन रेजिस्टेंस का जो बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन स्टैंडर्ड कलर कोड से उसकी वैल्यू निकालो। डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ टेम्परेचर इंक्लूडेड है। कंडक्टर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर के ऊपर कैसा वेरी होता है?
I will read few questions. I have removed it as a sample जैसे मैंने कुछ questions लिखे हैं. इलेक्ट्रिक सेल इज अ सोर्स ऑफ. हम लोग इलेक्ट्रिक सेल क्यों यूज करते हैं? अगर वी हैव टू वांट टू पास द करंट थ्रू द गिवन to overcome the opposition, means this battery electric source provides energy. It doesn't provide current. करंट तो है ही, लेकिन रैंडम मोशन के हिसाब के लिए से अगर बैटरी सप्लाई नहीं है तो नेट करंट जीरो आता है. We try to channelize all these free charge carriers in one definite direction, and for that they want energy to overcome the opposition. So cell or source of electricity never gives current, it always gives energy. The volt SI unit of EMF, even energy, EMF is measured in terms of volts, terminal PD और volts. ये हम लोग always पूछेंगे. Joining the cells in series, what will happen? Joining the cells in parallel, what will happen? Then if I have a cell of internal resistance R and in such is connected to R, then find that current in circuit. तो ये जो करंट हम निकालेंगे उसके लिए इंटरनल रेजिस्टेंस कंसिडर करना है, because cell is provided with value of internal resistance. So I will not only E by R, but it should be E upon I plus E upon capital R plus R. ऐसे क्वेश्चंस जरूर आएंगे. Then we'll proceed further. फॉर एग्जाम्पल सपोज सेमीकंडक्टर चैप्टर के ऊपर अगर बहुत सारे क्वेश्चन सेट किए जाएंगे, क्योंकि उसमें डिलीटेड पोर्शन बहुत कम है. ओनली द पार्ट 14.8 इज डिलीटेड, अदरवाइज एंटायर चैप्टर इज देयर. सो क्वेश्चंस लाइक कंडक्शन थ्रू सेमीकंडक्टर इज ड्यू टू होल्स भी है अवेलेबल थर्मल एजिटेशन के लिए, इलेक्ट्रॉन्स भी है. नॉट ओनली ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, नॉट ओनली ड्यू टू होल, बोथ आर द चार्ज कैरियर्स. सो इलेक्ट्रिक कंडक्शन इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, not only electrons, not only holes, etc. To obtain electron as majority charge carriers, which impurity is added? वो जो एक्सट्रिंसिक बन गया, इंट्रिंसिक यानी कि प्योर कंडक्टर, एक्सट्रिंसिक यानी कि इम्प्योर कंडक्टर. एक्सट्रिंसिक में दो टाइप, एन और पी. एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन रहेंगे. तो इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जैसा सेमीकंडक्टर एक्सट्रिंसिक टाइप आपको तैयार करना है, तो कौन सी इम्प्योरिटी ऐड की जाती है? दैट इम्प्योरिटी विच विल डोनेट इलेक्ट्रॉन. सो दैट शुड नॉट बी ट्राइवैलेंट, इट शुड बी पेंटावैलेंट, मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट, ट्राइवैलेंट. ये सब गलत है. कौन सा एक ऑप्शन? पेंटावैलेंट. होल इंडिकेट्स, अभी होल क्रिएट होता है ना, इसमें पेयरिंग के लिए इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है तो वो क्रिएट हो जाता है, यानी कि अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्विवेलेंट टू होल. ऐसे कुछ क्वेश्चंस आएंगे. होल्स आर प्रेजेंट इन, होल्स किस में प्रेजेंट रहते हैं? एज अ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर. P-type semiconductor which is of extrinsic type. ऐसे भी questions आएंगे. Then if you think of the chapter EM waves के बारे में, EM waves are produced by steady current, steady charge, accelerated charge, स्टेडी करंट थ्रू अ कंडक्टर. ऐसे ऑप्शंस हो जाएंगे. आप लोगों को मालूम है एक्सीलरेटेड चार्ज, इफ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम the charge has acceleration, means its velocity should change either in magnitude or in direction. Such accelerated charge carriers are the origin of EM waves. They are transverse in nature. AM waves, otherwise they will ask, electric and magnetic field in EM waves are mutually, number 1 perpendicular, number 2 parallel, making angle acute between them, obtuse between them. You know it is transverse in nature, means both fields are mutual perpendicular to each other.
देन रिफ्लेक्टेड फ्रॉम आयनोस्फीयर, हम लोगों ने कम्युनिकेशन सीखा ना, आयनोस्फीयर से जो वेव्स रिफ्लेक्ट होती है टेलीकम्युनिकेशन में हम लोग यूज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? व्हाट इज द लास्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ? ऐसे शॉर्ट विथ बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने सैंपल के लिए दिए हैं. आई विल सेट फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर्स. एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस है वो उनमें से सब के सब उनमें से ही आएंगे ऐसा नहीं है. आप लोगों को एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं डालने वाली हूँ. तो एक्सरसाइज के एमसीक्यू सॉल्व करने ही है, लेकिन वो उसमें से ही सब आएंगे ऐसा नहीं. ऐसे शॉर्ट बिट आसान क्वेश्चंस भी मैं डाल रही हूँ. सो सिंस टाइम इज रनिंग शॉर्ट, आई जस्ट want to tell you, एवरीवन हैज टू प्रूव हिमसेल्फ और हरसेल्फ. आप लोगों को खुद को प्रूव करना है, क्योंकि इसके हिसाब से ही आपका रिजल्ट आने वाला है और 12th की एडमिशन होने वाली है. स्कॉलरशिप के लिए भी 11th का रिजल्ट जरूरी है, स्कोरिंग अच्छा आना जरूरी है. तो एवरीवन हैज टू इम्प्रूव हिमसेल्फ, हैज टू प्रूव हिमसेल्फ. सो व्हाट यू डू, यू बिकम कॉन्फिडेंट. You study patiently. Read each and every line from each and every chapter. Revise one chapter a day. हर दिन एक चैप्टर आपको पढ़ना है, उसकी तैयारी करनी है. And then proceed ahead. You all keep up and do well. All the best for all of you. So this is the last lecture of the term. So I wish you all the best, and the entire syllabus is there. So I am closing the meet for all. All the very best. For oral for physics is not there. So ask the questions about orals to that subject teacher. For physics के लिए oral नहीं है, तो उसके बारे में हम लोगों को बातें करने की अभी जरूरत नहीं है. जिसका भी है उसको उन स्टूडेंट टीचर्स को पूछ लो. Is that clear? So I am ending the meet. All the very best. Keep up and study well. Do well.